السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ 387 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کردہ بالانگر فلائی اوور کا ریاستی وزیر کے ٹی آر کے ہاتھوں افتتاح۔ 1.13 کلومیٹر فلائی اوور کی تعمیر سے قطب اللہ پور و دیگر مقامات پر ٹریفک نظام بہتر ہوگا۔ ریونت ریڈی کی قیادت میں کانگریس تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرے گی، پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر ملو روی کا دعویٰ۔ جل پلی میونسپلٹی حدود کے مختلف وارڈز میں 55 لاکھ روپے لاگتی ڈرین کے کاموں کا ریاستی وزیر و رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی نے رکھا سنگ بنیاد۔ سرکاری دفاتر پر اردو سائن بورڈز تحریر کیا جائے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری اور رکن کونسل امین الحسن جعفری کی کمشنر بلدیات سے نمائندگی۔ مجلسی قائدین کی جانب سے ترقیاتی کاموں اور زیر التوا کاموں کی تکمیل کے لیے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ دورے جاری۔ عہدیداروں سے کاموں کو جلد تکمیل کرنے پر دیا گیا زور۔ بڑھتے ہوئے سائبر کرائم کی روک تھام اور اس کے تدارک کے لیے سائبر آباد پولیس کی جانب سے شعور بیداری پروگرام۔ کمشنر سائبر آباد وی سی سجنار نے دیے عوام کو ضروری مشورے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے بالانگر فلائی اوور جو 387 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے اس کا اپنی موجودگی میں افتتاح کروایا۔ 1.13 کلومیٹر کے اس فلائی اوور کا آغاز کے ٹی آر نے ایک مزدور خاتون سے کروایا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء ٹی سرینواس یادو، ملا ریڈی اور ٹی آر ایس اراکین اسمبلی بھی موجود تھے۔ بعد ازاں کے ٹی راما راؤ نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ فلائی اوور کی تعمیر کے بعد اس کو سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کے نام سے موسوم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عنقریب جوبلی بس اسٹیشن تا شامیر پیٹ تک اسکائی وے برج بھی تعمیر کیا جائے گا۔ کے ٹی آر نے بتایا کہ بالانگر فلائی اوور کے آغاز سے قطب اللہ پور اور دیگر مقامات پر ٹریفک نظام بہتر ہوگا۔ ట్రాఫిక్ వ్యవస్థను అందించేదానికి రవాణా వ్యవస్థని మరింత సులభతరం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయని చెప్పి కూడా నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను। ఒకవైపు జిహెచ్ఎంసి, మరొక వైపు హెచ్ఎండిఏ, ఈ రెండు సంస్థలు సంయుక్తంగా కలిసి ఈ రోజు బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలను హైదరాబాద్ మహానగరంలో తీసుకుంటా ఉన్నాయి। ఈ బ్రిడ్జిని ప్రత్యేకంగా హెచ్ఎండిఏ ద్వారా మనం నిర్మాణం చేయడం జరిగింది। నేను ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు ఒక మంచి మాట అన్నారు। హెచ్ఎండిఏ ద్వారా నిర్మాణం చేసిన ఈ బ్రిడ్జికి ఈరోజు డాక్టర్ బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారి పేరు పెట్టమని కోరినారు। చాలా మంచి ఆలోచన, మంచి సూచన। وزیر فائنانس ہریش راؤ نے سداشیو پیٹ میں 20 کروڑ روپے کی لاگت سے منی ٹینک بانڈ کا افتتاح انجام دینے کے بعد بات کرتے ہوئے بتایا کہ حیدرآباد کے ٹینک بانڈ کی طرح وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اضلاع میں بھی منی ٹینک بانڈ قائم کرنے کو منظوری دی ہے تاکہ عوام کو سیر و تفریح کی سہولت میسر ہو سکے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے بتایا کہ تلنگانہ کی ٹی آر ایس حکومت کسانوں کو مفت برقی کے علاوہ ریتو بندھو اور ریتو بیمہ اسکیم کی سہولت بھی فراہم کر رہی ہے۔ نائب صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ملو روی نے بتایا کہ کانگریس پارٹی میں صدر ٹی پی سی سی اور سی ایل پی عہدے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور ریونت ریڈی کے علاوہ بھٹی وکرمارکا مل کر ریاست میں پارٹی کو مستحکم کرتے ہوئے کانگریس کو اقتدار پر فائز کریں گے۔ انہوں نے پولیس اور حکومت کو انتباہ دیتے ہوئے بتایا کہ اگر پولیس ریونت ریڈی کی جائز تقریب اور ریالی میں مداخلت کرے گی تو کانگریس قائدین اسے برداشت نہیں کریں گے، جبکہ ریالی اور جائز تقریب میں کورونا کے رہنما خطوط پر عمل کیا جائے گا۔
रियासती वज़ीर तालीम रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी ने जलपली म्यूनसिपलिटी हदूद में सदर नशीन अब्दुल्ला सादी के हमरा वार्ड नंबर 11, 12, 13 और 15 में 55 लाख रुपए की लागत से ड्रेन के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि मज़कूरा कामों को 1 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दे दी गई है, जबकि वज़ीर तालीम ने यह भी बताया कि तमाम वार्ड्स के मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृष्णा वाटर लाइन का जो भी मुकामी मकीन कनेक्शन ले रहे हैं और जिनके मकानात 60 गज पर हैं उन्हें 1 रुपये में कनेक्शन दिया जाएगा और दरमियानी अफराद के झांसे में ना आने का उन्होंने मशवरा दिया। वज़ीर तालीम ने कहा कि मुतालिका कॉरपोरेटर्स की तरफ से जो भी नुमाइंदगी की गई है इसे यकीनी बनाया जाएगा। 11th, 12th, 13th అండ్ 15th సంబంధించిన వార్డులకు సంబంధించిన కౌన్సిలర్స్ అండ్ అధికారులందరూ మిగతా కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు దాదాపుగా 55 lakhs సంబంధించి డ్రైన్స్ సంబంధించి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది. ఒక 1 month ఇవన్నీ పూర్తి చేసి ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది. బస్తీలోకి వస్తున్నప్పుడు మెయిన్గా ఇష్యూస్ కొన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్న సందర్భంలో అవుట్లెట్ సంబంధించి ఇప్పుడు తీసుకెళ్లి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్లో వేస్తాం. ఫారెస్ట్ ల్యాండ్లో ఇబ్బంది కాకుండా చూసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. అవుట్లెట్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోమని. తర్వాత ఇంకొక విజ్ఞప్తి కూడా నా ప్రజలందరికీ కూడా, सरकारी दफातर पर उर्दू साइन बोर्ड्स की तहरीर से मुतालिक सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी वफद का मुतालिका हक्काम से नुमाइंदगियों का सिलसिला जारी है और मंगल को मोतमद अमूमी मजलिस व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी के हमरा कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस का मकतूब उनके हवाले किया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़ूफ़ हासिल है और सदर मजलिस ने अपने मकतूब में लिखा है कि बल्दिया के जितने भी दफातर हैं वहाँ उर्दू साइन बोर्ड तहरीर किया जाए। सदर मजलिस ने यह भी बताया कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस सिलसिले में तवज्जो दी जाए। कमिश्नर बल्दिया ने इस सिलसिले में तयख़ुन दिया कि तमाम दफातर पर उर्दू तहरीर की जाएगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार साहब से मुलाकात की है। सदर मोहतरम का मकतूब उनके हवाले किया। रियासत तेलंगाना में उर्दू का दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ हासिल है। कमिश्नर बल्दिया से नबी मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने अपने लेटर में लिखा, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम इलाकों में जोनल ऑफिसरों पे और सुपरवाइजर के सैनिटरी सुपरवाइजर के ऑफिसर जितने ऑफिसर्स है उन तमाम जगहों पर साइन बोर्ड में उर्दू को भी शामिल किया जाए। हमारी रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है, इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कमिश्नर साहब ने वादा किया कि इमीडिएट में अहकाम जारी करूँगा। पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उर्दू को लिखाएंगे। उन्होंने तयक़ुन दिया, वादा किया। उनको तवक्को है क्योंकि उर्दू की दूसरी सरकारी ज़बान की इज्जत से अमलावरी के लिए नस्ल मिल्लत की हिदायत पर मुसलसिल तमाम महकमे जात में नुमाइंदगी की जा रही है और इंशाअल्लाह तवक्को है हर तरफ। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि एपेक्स काउंसिल में जिस वक्त कृष्णा नदी से आंध्र प्रदेश को 575 टीएमसी और तेलंगाना को 299 टीएमसी पानी सरबराह करने का फैसला किया गया था, उस वक्त वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव क्यों खामोश थे, इसकी वो वजाहत करें। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने जगन से मफाहमत करते हुए तेलंगाना का पानी आंध्रा को सरबराह किया है। मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा कुरमागुड़ा बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ पर जारी ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का मुआयना किया और मज़कूरा कामों की तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली ने अपने पैदल दौरे के दौरान मुकामी आवाम से भी मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत भी हासिल की। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मज़कूरा ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को जल्द तकमील करने की हिदायत दी, जबकि दौरे में मौजूद बल्दी, बरखी और आबरसानी के अहदेदारों ने रुकन असम्बली को तयक़ुन दिया कि जल्द ही ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली व दीगर भी मौजूद थे। कुरमागुड़ा इलाके में
आज बल्दी बरकी आबरसानी अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। वाहिद कॉलोनी, अलजाबरी कॉलोनी और जवाहरपुरा इन इलाकों में मसाइल की हल के लिए नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस वकील पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉर्पोरेटर, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शफात साहब, सोहेल साहब और हमारी इब्तदाई के तमाम मौजूदार वकील साहब की निगरानी में यहाँ पे दौरा किया, बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की। सबसे पहली बात तो ये है यहाँ के नालों की डिसल्टिंग होना है। बारिश का सीज़न शुरू हो गया, बल्दिया वालों की लापरवाही की इंतहा हो गई है, आज तक नालों का काम शुरू नहीं करे। इंशाल्लाह एक 2 रोज में जोनल कमिश्नर के पास ये डिवीज़न के ऑफिसरों की मीटिंग रखेंगे, जल्द से जल्द नालों की डिसल्टिंग का काम करेंगे। उसके बाद कुछ नालों की रीमॉडलिंग है, कुछ पानी के और ड्रेनेज के लाइनों की मंजूरी है जो इंजीनियर को लिखा दिया गया है तखमीना तैयार करने के लिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो कामों की मंजूरी के बाद टेंडर होंगे, उसके बाद वो काम का आगाज़ होगा। बल्दी बरकी आबरसानी मसाइल की एक सुई के लिए मुसलसल आवाम से राबते में काम अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह कुरमागुड़े के एरिए में भी बहुत सारे काम मंजूरा है, कुछ काम मंजूर होने के हैं। इंशाल्लाह एक हफ्ते 10 दिन के मजलिसी कायदीन की जानिब से अपने हलकों और डिवीजन्स में तरक्याती और ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के लिए किए जाने वाले दौरे जारी हैं। चुनाचे हलके राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन ने इस ज़िमन में आज शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके हसन नगर का दौरा किया। इस पैदल दौरे के मौके पर बल्दी और महकमे आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे, जबकि हसन नगर के इलाके जात बर्फ़ फैक्ट्री, रशीद कॉलोनी और शोएब कॉलोनी के अलावा मुकामी बस्तियों का दौरा करते हुए मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुकामी आवाम से मुलाकात भी की और बल्दी मसाइल का जायज़ा लेते हुए मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों को कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इसके अलावा मजलिस कायदीन ने बल्दिया के सफाई अमले से भी इलाके में साफ़ सफाई से मुताल्लिक़ वजाहत तलब की। दौरे के मौके पर बरक़ी ट्रांसफार्मर्स का भी मुआयना किया गया, जबकि मुकामी आवाम की शिकायत पर बरक़ी ट्रांसफार्मर से मुताल्लिक़ भी अहदेदारों की तवज्जो मबजूल करवाई गई। इस दौरे के दौरान मुकामी मजलिसी सुदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी ने आज पत्थरगट्टी डिवीज़न में जारी तरक्याती और ज़ेर इल्तिवा कामों का जायज़ा लेने के लिए बल्दी अहदेदारों के हमरा दौरा किया। कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी के हमरा प्रोजेक्ट SE दत्तू पंतु के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। मज़कूरा अहदेदार और कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी ने पत्थरगट्टी, गुलजार हॉल और काली कमान के अलावा प्रोजेक्ट के तहत जारी दीगर कामों का मुआयना किया। कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी ने बताया कि मज़कूरा अहदेदारों को प्रोजेक्ट के कामों की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई गई है, क्योंकि SC प्रोजेक्ट के काम सुस्त रवि का शिकार हैं। बिलखुसूस काली कमान के ज़ेर इल्तिवा काम में कोई तेज़ी नहीं लाई गई और गुज़िश्ता 3 महीनों से तामीराती काम में सुस्ती के बायस ट्रैफिक मसला भी दरपेश है। कामों का मुआयना करने के बाद महमूद सोहेल खादरी ने बताया कि अहदेदारों ने कामों में सूरत पैदा करने और रुकन असम्बली के हमरा इजलास मुनक्किद करते हुए मज़कूरा प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का तयख़ुन दिया है। साइबर क्राइम की रोकथाम और उसके तदारुक के लिए आवाम को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने एक शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। साइबराबाद पुलिस की जानिब से अत्तापुर में साइबर क्राइम पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने बताया कि बढ़ते हुए साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए आवाम का ताउन भी ज़रूरी है और जो लोग फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए पैसे का लेन देन करते हैं उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जबकि फ़र्ज़ी वेबसाइट पर भी आमदनी में इजाफ़ा और ज़ायद पैसे का लालच देकर लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है, जिस पर काबू पाने और साइबर क्राइम के तदारुक के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार ने मज़कूरा प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात बताईं। कमिश्नरेट में साइबर क्राइम की एक अवेयरनेस डे करके आज हम लोग लॉन्च किया है। हमारा ऑफिसर्स एवरी पुलिस स्टेशन, डिवीज़न, जोन में ऐसी मीटिंग्स हो रहे। हमारा सेक्टर SS की लीडरशिप में
हम लोग जाके वहाँ पे एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज़, फार्मा, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग सब इंडस्ट्रीज़ के पास जाके ये वो अवेयरनेस लेके आने के लिए हम लोग एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो साइबर क्राइम में विक्टिम हो रहे वो सब लोग एजुकेटेड है, जो सिटी में रह रहे, जो एजुकेटेड है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आईटी एम्प्लॉयज़ है, साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, रिटायर्ड ऑफिसर्स है, बहुत सारे लोग ये क्राइम के लिए विक्टिम हो रहे। सो लोगों में एक अवेयरनेस लेके आने के लिए ये एक अटेम्प्ट है। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप एक बार सोच लिए, कॉमन सेंस यूज़ करिए कि ये सच हो सकता है, नहीं सो हो सकता है करके आप मालूम होने के बाद ही ट्रांजैक्शन करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। और बहुत सारे लोग महकमे इनकम टैक्स की जानिब से मंगल के रोज़ रामकीज़ कंपनी के दफ्तर पर धावा किया गया। रामकीज़ कंपनी वाक़ गच्चीबौली के दफ्तर पर महकमे इनकम टैक्स की 15 टीमों के धावे जारी हैं। पता चला है कि मज़कूरा कंपनी की जानिब से आमदनी में नुकसान बताया गया था, जिसके तनाजुर में महकमे इनकम टैक्स ने ये धावे किए हैं। मज़कूरा कंपनी YSRCP के रुकन राज्यसभा अयोध्या रामी रेड्डी की बताई गई है और इनकम टैक्स के अहदेदारों ने ताहाल इन धावों से मुताल्लिक़ तफसीलात नहीं बताई, जबकि इनकम टैक्स के अहदेदारों की जानिब से अभी तहक़ीक़ात जारी है। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने एक अहम इत्तला पर कार्रवाई करते हुए NV धाबा वाक़े अलजुबैल कॉलोनी में धावा किया और ख्वाजा शहबाज़ुद्दीन नामी शख्स को हिरासत में लिया, जबकि उसके कब्ज़े से गुटखा, 15 किलो जर्दा के पैकेट्स के अलावा अंबर जर्दे के पैकेट्स और दीगर अशिया भी जब्त की गई। बाद अज़ां साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मुलजिम को चंद्रायनगुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के बैंक कॉलोनी के एक मकान में सरखी की वारदात अंजाम दी गई, जहां गुज़िश्ता रात सारे खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुए और 15 तोले पर मुश्तमिल तिलाई ज़ेवरात का सरखा कर लिया गया। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। आसपास के CCTV फुटेज का भी मुशाहिदा किया जा रहा है, जबकि क्लूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। मियाँपुर के सब इंस्पेक्टर V यादगिरी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मियाँपुर के सब इंस्पेक्टर V यादगिरी ने ज़मानत के सिलसिले में 20,000 रुपये रिश्वत तलब की थी और मुतासरा शख्स शेख सलीम ने ACB से रुजू होकर इसकी शिकायत की, जिस पर जाल बिछाकर V यादगिरी को रंगे हाथों पकड़ा गया। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में तिलाई चेन छीनने की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन के खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाया गया है। पुलिस के मुताबिक शिव सिंह, गुलाब सिंह और वेंकट रमना बाबू को तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस पाया गया था। सड़कों पर तनहा जाने वाली खवातीन को ये सारिक निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने कहा है कि मुलजिमीन माधवपुर के इलाके में एक्टिवा पर घूमा करते थे। साल 2021 में इस टोली ने माधवपुर और रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3 सरखे की वारदातें अंजाम दी थी, जबकि 18 मई 2021 को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और उनके कब्जे से 8 सेलफोन और एक एक्टिवा गाड़ी भी जब्त की गई थी। तीनों मुलजिमीन के खिलाफ कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने PD एक्ट लगाने की हिदायत दी है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के रहमत नगर श्रीराम नगर में घर के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन वायर में शॉर्ट सर्किट की वजह से 13 साल लड़की शदीद झुलस गई। बताया गया है कि 80% तक लड़की झुलस गई।
जहां तकरीबन 8 घरों में एक साथ शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से फ्रिज और टीवी को नुकसान पहुंचा। मुकामी अवाम ने कहा है कि इससे पहले भी हाई टेंशन बरक़ी तारों में शॉर्ट सर्किट के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जबकि बल्दी इंतखाबात के मौके पर TRS कायदीन ने इस मसले की यकसुई का तयख़ुन दिया था और हाई टेंशन बरक़ी तारों को हटाने का भी तयख़ुन दिया गया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया और हादसे को 24 घंटे गुजरने के बाद भी किसी भी TRS लीडर ने मुकाम वाक़े का मुआयना नहीं किया। दोंडीगल पुलिस स्टेशन के सुराराम में शादीशुदा खातून की नुआश मुश्तबा हालत में पाई गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त 23 साला श्रीशा की हैसियत से की गई है। श्रीशा के शौहर ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ ज़ावियों के तहत पूरे मामले की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। आदि बटला पुलिस स्टेशन हदूद की आउटर रिंग रोड पर इंडियन गैस का टैंकर उलट गया। बताया गया है कि टैंकर बेकाबू होने की वजह से ये हादसा पेश आया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सड़क पर हेवी टैंकर के उलटने की वजह से ट्रैफिक जाम देखी गई और वाक़े के बाद ट्रैफिक का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया गया। ज़िले विकाराबाद के परगी पुलिस स्टेशन हदूद में विकाराबाद पुलिस ने वेंकट रमना नामी किरानी स्टोर पर धावा करते हुए 50,000 रुपये मालियती गुटखा और जर्दे के पैकेट जब्त किए, जबकि मालिक किराना स्टोर के खिलाफ इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में गुटखा और जर्दे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है और पिछले दिनों ग्रेटर हैदराबाद में सिटी पुलिस ने सिलसिले में कार्रवाइयाँ भी अंजाम दी थीं। उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में बरसर खिदमत आउटसोर्सिंग स्टाफ को अचानक बर्खास्त कर देने के खिलाफ मंगल के रोज़ आउटसोर्सिंग नर्सेस ने DMO ऑफिस वाक़े कोठी पर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें दोबारा ड्यूटी पर रुजू करने का मुतालबा किया। आउटसोर्सिंग स्टाफ नर्सेस ने बताया कि उन्होंने अपनी जान जोखम में डालते हुए कोरोना के दौरान अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन उन्हें पीर के रोज़ अचानक ड्यूटी से बर्खास्त करने की इत्तला दी गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। $387 करोड़ की लागत से तामीर करदा बालानगर फ्लाईओवर का रियासती वजीर KTR के हाथों इफ्तिताह। 1.13 किलोमीटर फ्लाईओवर की तामीर से खुतबुल्लापुर व दीगर मकामात पर ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होगा। रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मल्लू रवि का दावा। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हदूद के मुख्तलिफ वार्ड्स में 55 लाख रुपए लागती ड्रेन के कामों का रियासती वजीर व रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। सरकारी दफातर पर उर्दू साइन बोर्ड्स तहरीर किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी और रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी। मजलिसी कायदीन की जानिब से तरक्याती काम और ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के लिए मुतालिका महकमों के ओहदेदारों के साथ दौरे जारी। ओहदेदारों से कामों को जल्द तकमील करने पर दिया गया जोर। बढ़ते हुए साइबर क्राइम की रोकथाम और उसके तदारुक के लिए साइबराबाद पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम। कमिश्नर साइबराबाद VC सजनार ने दिए आवाम को ज़रूरी मशवरे। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।